Hello students, I am Jaisri Miss. Now today I am going to start the new exercise 11D in which we have to do we will do this divide division. First sum minus 70 a cube upon divided by 14a square. So keep these numbers and this different minus 70 upon 14 multiply by a raised to 3 upon a raised to square. Now in exponents we have studied that whenever there is a division there is a subtraction of the power. So he is cutting 14 ones are 14 5s are minus 5 a raised to 3 minus 2 a minus 5a. This is first sum. Second sum. Now 24 x cube y cube divided by minus 8y square. Here keep these numbers apart and keep this here y cube upon y square. So 8 ones are 8 threes are so minus 3 and here x cube is remain same but y cube mein there is a subtraction of the power 3 minus 2 so it will become x cube y. This is the answer. Minus 24 this. Now third one. Third sum 15 a raised to 4 b divided by minus 5 a cube b. Same thing we have to do. Keep this number apart. Multiply by a raised to 4 b a raised to 3 b. 5 ones are 5 threes are b is cut. So now there is a subtraction of the power. So a raised to 4 minus 3. So it is equal to minus 3a. This is the answer. Third sum. There is a keep these numbers apart and keep these variables apart. Then whatever there is this b this cancelled. Now this is the division. So there is a subtraction of the power 4 minus 3 and answer is 3a. This is the answer. Now fourth sum. Minus 24 x raised to 4 and d raised to 3 upon minus 2 x square and d raised to 5. Now here you have to do this minus 24 upon minus 2 apart. Multiply by x raised to 4 upon x raised to 2 d raised to 3 upon d raised to 5. Now this will cut 2 ones are 2 12s are minus minus plus. In this x raised to 4 minus 2 and here the subtraction it will take place in denominator because 5 is greater than 3. So there is a subtraction of power in denominator 5 minus 3 sorry. So answer will be 12x square upon d raised to 2. This is the answer of this 12. 4 minus 2 2 5 minus 3 2 and in this d 5 is greater than 3. So there is a subtraction it will be take place in denominator. Now fifth sum. Fifth sum 63 a raised to 4 b raised to 5 and c raised to 6 upon 9 minus 9 a raised to 2 b raised to 4 c raised to 3. Same thing 63 upon minus 9 a raised to 4 minus 2 b raised to 5 minus 4 and c raised to 6 minus 3. 9 ones are 9 sevens are. So minus 7 a raised to 2 b and c raised to 3. This is the answer.
of fifth sum. Now sixth sum, 8x minus 10y plus 6c and divided by 2. Divide by 2. So first this separate, this is different. Before that there is monomial, that is division of monomial versus monomial. Now here there is a polynomial versus monomial. So this is the different way. You have to do the separate 8x upon 2, 10y upon 2 and 6c upon 2. You should keep this minus minus and plus plus as it is, right? Now 2 1s are 2 4s are, 2 1s are 2 5s are, 2 1s are 2 3s are. So answer is 4x minus 5y plus 3c. This is the answer of sixth sum. Now seventh sum. 15 a cube b raised to 4 minus 10 a raised to 4 b raised to 3 minus 25 a raised to 3 b raised to 6 divided by minus 5 a raised to 3 and b raised to 2. Divide. Same the previous sum that we have done, same thing it will done here. 8 raised to 3 b raised to 4 upon minus 5 a raised to 3 b raised to square. 10 a raised to 4 b raised to 3 minus 5 a raised to 3 b raised to square. 25 a cube b raised to 6 minus 5 a raised to 3 b raised to 2. Here 5 1s are 5 3s are, a cube cut. So minus 3 and b raised to 4 minus 2, subtraction of the power. Now here this minus minus it will be plus. 5 1s are 5 2s are and 2 a raised to 4 minus 3 b 3 minus 2. Here also minus minus plus. 5 1s are 5 5s are, so 5 a cube cut, to b raised to 6 minus 2. The answer is equal to minus 3b square plus 2a b plus 5 b raised to 6 minus 2 4. This is the answer. Understood everyone? You have to cut down whatever and then there is a subtraction of the power. 7th sum. Now 8th sum. Eighth sum. Minus 14 x raised to 6 y raised to 3 minus 21 x raised to 4 y raised to 5 plus 7 x raised to 5 y raised to 4 divided by 7 x square y square. Now here same thing happen. Minus 4 x raised to 6 y raised to 3 upon 7 x square y square minus 21 x raised to 4 y raised to 5 upon 7 x square y square plus 7 x raised to 5 y raised to 4 upon 7 x square y square. Now cutting 7 1s are 7 2s are minus 2. Abhi there is subtraction of the power y raised to 3 minus 2. Cutting 7 1s are 7 3s are 3 x raised to 4 minus 2 y raised to 5 minus 2. 7 7 cut down, x raised to 5 minus 2 y raised to 4 minus 2.
The answer is minus 2x square x raised to 4 y 4 and y minus 3 x square y raised to 3 plus x cube y square. This is the answer of 8th sum. Understood? Now move on to question number 2. Now question number 9. First, now there is a division of polynomial versus polynomial. So in this the different method is there. Divide a plus 4 divided by a square plus 7a plus 12. Now in this इधर जो जितना भी a प्लस 4 है तुम लोग जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, तो इधर कंपल्सरी देयर इज a स्क्वायर इधर आना ही चाहिए. तो अभी a से हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग a लगाएंगे. तो a इंटू a क्या आएगा, a स्क्वायर, राइट, एंड 4 इंटू a 4a, राइट. नाउ हियर सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज, 7 माइनस 4 3a, ऊपर से निकाला 12, राइट. नाउ अभी इधर 3a है तो अपने को इधर 3a लाने का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. अगर इधर प्लस का साइन है तो इधर प्लस आएगा, अगर इधर माइनस रहेगा तो माइनस आएगा. तो ना 3 इंटू ए 3a आणि 4 इंटू 3 12, आंसर 0. तो द आंसर इज सब्ट्रैक्शन, इसका डिवीजन का आंसर है a प्लस 3, इसका आंसर फर्स्ट है. खाली तुम लोग को ये इक्वल करना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए. जिधर ये नंबर है a स्क्वायर इधर a स्क्वायर लाना है, इधर 3 है इधर 3a लाना है. तो किससे मल्टीप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई. नाउ सेकंड सम. नाउ नेक्स्ट 10th सम, डिवीजन x माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54. अभी तुम लोग को इधर एक्स स्क्वायर लाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स विथ एक्स. तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x, साइन चेंज 9x 6 प्लस 3 9 माइनस 54. अभी तुम लोग को इधर क्या लाना है, 9x लाना है. तो अभी तुमने x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ. तो प्लस 9, इधर प्लस का साइन है इधर प्लस आएगा 9x और 9 6 54, आंसर 0. तो द आंसर इज x प्लस 9, caution x प्लस 9. 10 सम कंप्लीटेड. नाउ 11 सम. इट्स वेरी इजी, खाली तुम लोग को इक्वल करना है खाली. फर्स्ट क्वेश्चन का 11 सम. 3x प्लस 4y 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 12y स्क्वायर. अभी तुम लोग को इधर 12x स्क्वायर लाना है, तो अभी 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 4 से. तो 4x बराबर, तो 4 इंटू 3 12 और x इंटू x स्क्वायर, राइट. नाउ 4 4 जा 16, तो 16xy माइनस माइनस 7 माइनस 16 कितना आएगा, माइनस 9xy माइनस 12y स्क्वायर, राइट. अभी इधर माइनस का साइन है तो इधर माइनस आएगा, राइट. अभी तुम लोग को इधर 9xy चाहिए और इधर कितना है 3x है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9xy आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई और y, तो 3y क्या आएगा, 3y 3x इंटू 3y कितना आएगा, माइनस 9xy. 4 इंटू 3 माइनस 12y स्क्वायर 0. तो द आंसर इज 4x minus 3y. It is the answer. 11 sum done. Now
12। ट्वेल्थ का सम है डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स रेज टू 6 माइनस 8। तो अभी तुम लोग को इधर एक्स रेज टू 6 है, राइट, इधर स्क्वायर है, तो हम लोग 6 के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक्स रेज टू 4, ठीक है, 4 प्लस 2 कितना आएगा 6, तो एक्स रेज टू 4, तो एक्स रेज टू 4 इंटू दिस एक्स रेज टू 6 आ गया। अभी माइनस 2 एक्स रेज टू 4 आएगा, 2 इंटू एक्स रेज टू 4 2x माइनस, तभी ये प्लस का साइन चेंज। अभी ये तो दोनों अनलाइक टर्म है, तो इसे लिखेंगे 2x रेज टू 4 माइनस 8, राइट, ये माइनस का प्लस हो गया और माइनस 8। अभी अपने को इधर क्या लाने का 2x रेज टू 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 हो जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x रेज टू 4 और 2 इंटू 2 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस, तो इसमें आएगा 4x स्क्वायर और माइनस 8। अभी तुम लोग को इधर x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या बाकी है, खाली 4 ही बाकी है, तो इसको प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर और 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 टू ज़ा 8, आंसर इज 0। तो द आंसर इज रिमाइंडर 0, x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज द आंसर। Now 13th sum. It's very big now. 2x square minus x minus 6, x cube 6x cube minus 13x square minus 13x प्लस 30, राइट। अभी तुम लोग को इधर 6x क्यूब लाने का, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, और 3x क्या आएगा 3x, क्योंकि x स्क्वायर है ना, इधर क्यूब है तो और x चाहिए अपने को, तो 6x क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3x स्क्वायर, 6 3 ज़ा 18 माइनस 18x प्लस प्लस माइनस, ये कट हो गया, 13 प्लस 3 16 माइनस 13 प्लस माइनस 10 एक्स स्क्वायर, 18 माइनस 13 એટલે प्लस 5x प्लस 30, राइट। अभी तुम लोग को इधर माइनस 10x को लाने का, तो हमको 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और माइनस 5 से, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, तो इधर माइनस आएगा 5 खाली 5 से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, राइट, तो कितना आएगा 5 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू माइनस 5 माइनस 10x स्क्वायर, x माइनस एक्स इंटू माइनस 5 प्लस 5x माइनस 5 इंटू 6 प्लस 30 माइनस 6, so the answer is 3x minus 5. Understood everyone? Next, 13 sum done. Now 14 sum. Question number 1 का 14 sum. 2a plus 3b plus 5c divided by 4a square plus 12ab plus 9b square minus 25c square। अभी इधर 4a स्क्वायर है और इधर 2a है, तो 4a स्क्वायर लाने के लिए 2a को किससे मल्टीप्लाई करें 2a से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर हो गया, और 3 इंटू 2 6ab 5 2 ज़ा 10, तो 10ac, ये साइन चेंज। अभी ये तो अनलाइक टर्म्स है, तो ये दोनों कट हो गया, 12 माइनस 6 कितना आएगा 6ab
बाद में 9b² -10ac -25c², ऊपर से ये 25c² नीचे, और 9b² माइनस ये प्लस का साइन चेंज -10ac। अभी इधर 6ab है तो तुमको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो उसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3b, b भी चाहिए अपने को, तो 6 2a इंटू 6 3b 6ab, 3 3 ज़ा 9 9b² और 5 3 ज़ा 15bc 15bc। तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, हाँ अभी ये कट हो गया, इसमें आएगा -10ac -15bc -25c²। ये दोनों अनलाइक है, ये देखो इधर ac है इधर bc है, तो अनलाइक, तो -10ac ये -15bc -25, राइट। तो अभी अपने को इधर -10ac है तो इधर हम लोग क्या लेंगे 5c, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5, तो 5c माइनस का साइन -5c, राइट। तो 2 इंटू 5 -10ac, 3 इंटू -5 -15bc, 5 5 ज़ा 25 -25c², साइन चेंज, रिमाइंडर 0, तो द आंसर इज 2a + 3b - 5c, ये आंसर 14th sum। नाउ 15th sum। फिफ्टीन सम। अभी 15 सम में जो क्वेश्चन है इसमें जो नंबर्स है वो रैंडमली लिखे हुए हैं, मीन्स तो यू हैव टू पुट इट इन ऑर्डर। अभी जो डिवाइडेड बाय है तो x + 4 - x³ है, तो पहले -x³ लिखो प्लस x + 4, और वैसे ही इसमें कॉस्ट डिविडेंड में पहले x�6, पहले x�6 लिखो, बाद में -2x⁴ -8x³ प्लस x² प्लस 8x प्लस 16। जो रैंडमली लिखे है ना, तो यू हैव टू पुट इट इन ऑर्डर, देन यू डू द डिवीजन। ना इधर -x³ इधर x�6 है, तो इधर x�6 लाने के लिए हम लोग -x² -x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और x इंटू x³ कितना है -x⁴ प्लस 4 इंटू दिस -4x⁴, साइन चेंज, ये दोनों कट, -2 + 1 એટલે -x⁴, 8 - 4 -4x³, राइट। देन ऊपर से निकालो x² प्लस 8x प्लस 16। अभी तुम लोग को इधर -x⁴ लाना है, इधर कितना है -x³ है, तो एक ही x का जरूरत है, तो प्लस x, राइट। तो -x⁴, x इंटू x x² तो इधर आएगा x², और 4 इंटू x 4x, बराबर उसके नीचे लग देगा, जो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, तो ये नीचे आएगा 4x³, ये दोनों कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, 8 - 4 એટલે 4x प्लस 16, राइट। नाउ इधर -4x³ इधर -x, तो 4 ही बाकी है, तो +4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो -4x³ x इंटू 4 प्लस 4x, 4 इंटू 4 16, रिमाइंडर 0, so the answer is -x³ plus x plus 4, it is the answer। Now this is 15 sum done।
Now we completed the second question, first question. Now move on to question number 2. Move on to question number 2. Find the quotient and the remainder if any, and when divided, and इसका verify भी करना है आंसर्स, right? तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन डिवाइडेड बाय a plus 1, a plus 1 divided a cube minus 5a square plus 8a plus 15. तो इधर a क्यूब है तो अपने को a को कितने साथ मल्टीप्लाई, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर तो क्या आएगा a क्यूब और 1 इंटू a स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 6a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15. अभी हम लोग इसको क्या लाना है अपने को, माइनस 6a स्क्वायर, तो माइनस 6a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि a इंटू a स्क्वायर और 6 बचा, 6 माइनस 6a स्क्वायर, 6 इंटू 1 इंटू 6 है माइनस 6a, तो प्लस 14a प्लस 15, ये कट हो गया, राइट. तो अभी 14 से अभी अपने को माइनस है तो इधर a है ना 1 सिंगल, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 है और 14 1 जा 14, तो रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर 1. सो ये क्वोशंट, ये डिवाइजर और रिमाइंडर. अभी तुम लोगों को क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है. तो वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. इसमें जो क्वोशंट ये है और डिवाइजर ये, और इसमें रिमाइंडर कितना 1, यू हैव टू वेरीफाई. तो a प्लस 1 a क्यूब a स्क्वायर सॉरी माइनस 6a a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 14 प्लस रिमाइंडर इज 1. तो अभी a इसको स्प्लिट मेथड से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 रिमाइंडर इज प्लस 1. तो अभी इसका आएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 14a प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 14 प्लस 1. तो इसका आएगा a क्यूब इस माइनस 6 माइनस 5a स्क्वायर 14 माइनस 6 8a प्लस 15. दिस इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू दिस. तो इट इज हैंस वेरीफाइड, क्या आएगा, hence it is verified. So this is how you have to do the verification. Dividend is equal to quotient multiply by divisor plus remainder. तो ये जो इसका जो आंसर है ना वो डिविडेंड के जैसा होना चाहिए, डिविडेंड, राइट. तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया और उसका वेरिफिकेशन भी हो गया सेकंड का. नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड. सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, हाँ, डिवाइडिंग x माइनस 3x रेज टू 4 प्लस 6x रेज टू 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7. नाउ 3x रेज टू 4 लाना है तो इसको x को किससे, 3x रेज टू 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या है 3x रेज टू 3. तो क्या आएगा, 3x रेज टू 4 आएगा और 3 3 9x क्यूब माइनस का साइन प्लस
9 + 6 15 x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। तो अभी इसको हम लोग 15 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये 15x³ आएगा और 15 × 3 = 45x स्क्वायर। साइन चेंज, 45 माइनस 39x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अभी अपने को इधर x है तो इधर 39x से मल्टीप्लाई, तो प्लस 39x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x स्क्वायर और 3 × 39 इट इज इक्वल टू 117 माइनस 117x। साइन चेंज, तो 119x माइनस 7। नाउ इधर अपने 119x है तो इसको प्लस 119 से मल्टीप्लाई करेंगे, 119x और 3 मल्टीप्लाई बाय 119 इज इक्वल टू माइनस 357। साइन चेंज, तो रिमाइंडर आएगा 350, ये कट हो जाएगा तो ये रिमाइंडर कितना आएगा 350। ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो दिस इज द आंसर। अभी हम लोग को वेरीफाई करना है, उसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी डिवाइजर कितना था अपने को, ये था x माइनस 3 और क्वोशिएंट है 3x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 119 प्लस रिमाइंडर है 350, राइट, 350। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्प्लिट मेथड से, x तो 3x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 119 माइनस 3, ये x और माइनस 3 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, 3x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 119x प्लस 350, 3x⁴ प्लस 15x³ प्लस 39x स्क्वायर प्लस 119x, 3 × 9x³ माइनस प्लस माइनस 45x स्क्वायर माइनस 39 117x माइनस 119 into 3 119 into 3 is equal to 357x plus 350, ये 119 into 3 is for 357x plus 350, तो 3x⁴। अभी ये x³ है, x³ के साथ कौन सा ये है, तो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6x³, x² के साथ ये 39x² माइनस 45, तो कितना आएगा 45 माइनस 39 तो इज माइनस 6x² અને 117x माइनस 117x हाँ स्क्वायर, और ये 119 था खाली, हाँ तो 11 माइनस 117x, तो इसका आएगा इधर प्लस 2x, 119 में से 117 माइनस करेंगे तो 2x आएगा, और 357 में से 350 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 7, तो इज इक्वल टू ये डिविडेंड। इट इज हैंस वेरीफाइड, क्या आएगा, हैंस इट इज वेरीफाइड। सेकेंड का सेकेंड हो गया। नाउ थर्ड वन,
नाउ सेकेंड का थर्ड वन, 3x plus 5 divided by 6x square plus x minus 15. नाउ अभी 3x है, अपने को 6x स्क्वायर लाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, और x ऑलरेडी 2 है तो इसमें और एक x आएगा, तो 2x, 6x स्क्वायर, 2 5 10x, तो माइनस 9x माइनस 15. अभी इधर माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, और अभी अपने को 9 चाहिए तो इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3, तो माइनस 9x माइनस 5 इज 15, माइनस 15 0. तो अब इसका वेरिफिकेशन, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो अभी इसका जो डिविडेंड डिवाइजर क्या है, 3x प्लस 5 और 2x माइनस 3, रिमाइंडर 0. अब इसको स्प्लिट मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और प्लस 5 को स्प्लिट करो, प्लस 5, 2x माइनस 3, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x माइनस 15, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू डिविडेंड क्या आएगा, तो इट इज वेरीफाइड, राइट. तो वी हैव डन द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द सम्स, 3 सम्स. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. If you have any doubt, you can ask me. Question number 3. Now the area of the rectangle is x cube minus 8x square plus 7, and one of the side is x minus 1. Find the length of the adjacent side. तो area of rectangle is equal to L into B. तो एक साइड तुमको फाइंड करना है, तो एरिया अपॉन लेंथ, तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7, इसको डिवाइड बाय x माइनस 1. तो हम लोग डिवीजन करेंगे अभी जो एडजेसेंट साइड फाइंड करने के लिए. तो x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7. तो अभी इसको अपने इधर एक्स क्यूब लाना है, तो उसको x को किससे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब और माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7. अभी इधर माइनस का साइन है तो पुट इट माइनस हियर, और x को किसके साथ मल्टीप्लाई, 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7x, तो माइनस 7x स्क्वायर, 7 इंटू 1 माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस प्लस 7x. तो इधर आएगा 7 माइनस 7x प्लस 7. तो अभी इधर माइनस 7 लाना है, तो इसको x को किसके साथ करेंगे, माइनस 7 से, माइनस 7x प्लस 7. The answer is adjacent side is x square minus 7x minus 7. It is the answer. The length of the adjacent side is this. Third question done. Now fourth. Fourth question. The product of two numbers is 16x raised to 4 minus 1. One of the number is this. Find the other number. Now the product कितना दिया हुआ है? Product means multiplication answer. तो 16x raised to 4 minus 1. और one of the number is one number is equal to 2x minus 1. So the other number find करने के लिए we have to divide this. तो 16x raised to 4 minus 1 upon 2x minus 1. So we have now we will do the division.
तो डिवीजन करने के लिए थोड़ा बड़ा है, तो डिवीजन इधर से स्टार्ट करेंगे। 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16x⁴ माइनस 1 डिवीजन। तो अभी इधर 16x⁴ है, तो अपने को क्या लाने का 16 लाने हैं, तो इधर 2 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और इधर कितने x 4 है, इधर एक ही है, 3 बाकी है, तो x3, तो 16x⁴ 1 इंटू दिस 8 माइनस 8x3, साइन चेंज हो गया। अभी 8x³ माइनस 1 आ गया, राइट। अभी हम लोग इधर 8 है, 8 तो इधर 2 से हम 2 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x 3 है तो इधर एक ही है, तो 2x बचे तो 4x², तो 8x³ 1 इंटू 4 माइनस 4x², साइन चेंज, तो 4x² माइनस 1। अभी अपना इधर 2 है तो इधर 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x², 1 इंटू 2 2 माइनस 2x, साइन चेंज, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो 2x माइनस 1। अभी इधर 2x है तो सेम ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x माइनस 1, आंसर इज 0। तो दिस इज द आंसर, आंसर इज 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1. It is the answer, fourth sum. Now fifth, last sum of this exercise, fifth, last question. Hmm. 11D, fifth question. Now divide x raised to 6 minus y raised to 6 by the product of x square plus xy plus y square and x minus y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, बाद में डिवीजन करेंगे। प्रोडक्ट में हम लोग करेंगे x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट मीन्स क्या, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अभी x को स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस इधर आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। तो ये दोनों काट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आंसर आएगा x³ माइनस वाई क्यूब। ये क्या आएगा, प्रोडक्ट का आंसर आएगा। अभी क्या बोला है कि डिवाइड x रेज़ टू 6 माइनस y रेज़ टू 6 बाय दिस आंसर, तो अभी हम लोग डिवीजन करेंगे। प्रोडक्ट हो गया, नाउ वी विल डू द डिवीजन, सेम सम कंटिन्यू। x³ माइनस y³, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, x रेज़ टू 6 माइनस y रेज़ टू 6। अभी इधर x³ है तो इधर x रेज़ टू 6 है, 3x बाकी बचे हैं, x रेज़ टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x6 और इसका आएगा x³ y³ y³ इंटू x³ क्या आएगा, x³ y³, साइन चेंज, तो x³ y³ और माइनस y रेज़ टू 6। अभी इधर x³ y³ नहीं है तो हम लोग प्लस y³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ y³ आएगा और y³ इंटू y³ कितना आएगा, y रेज़ टू 6, माइनस का साइन प्लस माइनस 0। सो द आंसर इज x³ प्लस y³। Now this completed the exercise 11D. If you have any doubt, you can ask me in WhatsApp. Bye. Stay healthy, stay safe. Bye.